Hello, good evening, and welcome back. I'm Vedant Patil, MGNF for Latur district of Maharashtra, and we are on episode number 11 of Fellowship Panchayat. Tonight, we have with us, first of all, Srishti Singla, who is MGNF in Gurdaspur district of Punjab, and and Nitesh Karkata, who is in Giridih district of Jharkhand. And also joining us tonight is a special guest because he is our senior and he was MGNF in Sonbhadra district of Uttar Pradesh and currently is working as a public policy fellow in Gumla district of Jharkhand, if I'm right. And very recently, they also won a PM award in aspirational districts, I believe. Yeah, And it's these are yeah, all the yeah. aspects we would definitely like to hear from him. But let's start tonight, first of all, with Srishti. Hello everyone. So I'm Srishti. So first of all, I would like to thank Vedant and Vishal for bringing up with this initiative. Actually, even like in the cohort, we were also discussing something similar. So we were like on the talks of each one, teach all, mentor all. So in that sense, we were thinking, but it couldn't be like we couldn't bring it to practice. I think it's a great initiative that you could actually do this. So it was like we wanted to share something like learning experience cohorts. So thank you so much for giving this platform. And yes, so I'll just briefly introduce myself. So prior to this fellowship, I have done bachelor's and master's in economics, and then I applied for this fellowship just 2 days before the deadline. So I got to know through WhatsApp group, and I liked it, and so I applied. That's also a funny story that how I actually came up because I was applying at 8 o'clock in the night, and I didn't had a degree which we had to upload over there, and I hadn't taken the bachelor's degree yet. So I was like, okay, अब तो reject ही हो जाएगी application. तो but चलो, still I collated my mark sheets और वो upload कर दी till 6 semester. And then even on the exam day, I reached late at the venue. And so I was like, अब तो exam छूट गया, नहीं होगा. But then eventually it happened and I came here. So currently I'm in Gurdaspur district of Punjab. It's a border district. So I'll come to that later. Sure. Nitesh? Okay, hello. My name is मैं मतलब नितेश किरकेटा। मैं ऐसे गुमला डिस्ट्रिक्ट से हूँ, झारखंड का, लेकिन सारा एजुकेशन वगैरह उड़ीसा में हुआ है, राउरकेला। उसके बाद इंजीनियरिंग किया था गुवाहाटी से। उसके बाद डायरेक्टली काफ़ी सारे एग्ज़ाम दे रहा था, तो लकीली इस पे क्रैक हो गया। तो सोचा कि 2 साल का एक्सपेरिमेंट है, सो लेट्स ट्राई। और इंजीनियरिंग के बाद मतलब मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जस्ट एज अ एक्सपेरिमेंट कि झारखंड का वो फेलोशिप है, वो एक्सपोजर, फिर आईएम एंड द गवर्नमेंट। सो ये 3 मतलब सोच के मैं अप्लाई कर दिया था। Okay, cool. And finally, Ramesh, you are a senior, but you could have been my batchmate because phase one के fellowship में I was there for the interview in Uttarakhand and then I flunked it. Oh, Oh, Yeah. so I didn't you know. are I you didn't the know this. same guy? Yeah. So are Sorry? you the same guy? Actually, 75 people were onboarded, but there was one guy who dropped out just before the नहीं day नहीं of नहीं orientation. नहीं नहीं नहीं. If I was selected, I would have taken it. अच्छा, ठीक है, कोई नहीं वेदांत. So hi Vedant, hi Vishal, hi everyone. I mean, thank you so much, for I mean, inviting me on this platform. I reached out to Vedant. I said, okay, so you guys are doing, awesome work. I mean, so I'll start with my introduction. So I am from Samastipur, Bihar. I have I born over there, but I've been brought up in Ranchi. I did my initial schooling over here. I did my graduation here in St. Xavier's in Indian and World History. Then I went to Jawaharlal Nehru University, JNU, and I did masters over there in international relations and politics. So it was during, I mean, I would say before MGNF, there was one episode actually. So I am Udaipur. They used to have a summer school. I don't know if you might be aware about it. So there was one, they had a summer school program. I am Udaipur. They used to run it. It was a 1.5 month residential program. Okay. So while I was, in JNU and I finished my first year, so I applied for that, and fortunately I got through it. So it was a 1.5 month program in which they had Indian
students as well as the US students. So we had the cohort of 28, and out of that there were around 12. They were from US, though they were studying in US, but they were from different national. Sort of like exchange program. Yeah, it was kind of exchange program. So IIM Okay. Udaipur and Deep University, they had this sort of. Oh, right. Yeah, so from India, they had invited two kind of people. One, those who were working in the development sector, especially around of 5 to 6 years. Those were mid-career, what you say, and the fresher students. So I was part of the fresher. So we were four people in fresher zone. I mean, so there was one girl who later went to Harvard, and there was another boy who was pursuing economics in Delhi, and then was me, and there was another guy. So sorry, there was another girl. She was from Jamia. So over there, this was at IIM Udaipur, where I first got introduced of this kind of development sector. So after that, once I finished that, and that was the first introduction to development sector, and I was totally naive. Matlab, I can say, in the entire cohort, I was one of the weakest link, but I was very fortunate, to be part of a small group. So they divided us in team. So we were 4 people. So there was one lady, she was from Albania, and she was a Fulbright scholar in US that time. And she had a work experience of, I think, more than a decade. And she had traveled in 5 countries. So, and her name is Abby Dodiba. So she was part of our team. Then you had the girl who went to Harvard. I mean, she was already, she got the admission when she came to IIM Udaipur. तो उसे ऑलरेडी एडमिशन उसे मिल चुका था, एंड शी वाज अबाउट टू गो. वो उसका प्रोग्राम था, वो करके उधर जाने वाली थी, दिल्ली से थी. और एक मैं था, एंड देयर वाज अनदर गाय, उनका भी 5-6 साल का वर्क एक्सपीरियंस है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में. सो आई वाज द वीकेस्ट लिंक. मुझे उधर कुछ आता नहीं था एक्सेप्ट टू राइट रिपोर्ट्स. So I have no idea how to prepare, questionnaires, I had no idea how do you go and, interact with your stakeholders, जहाँ पे आप उनसे मतलब, you get inputs which make sense. Right. तो फिर when I came back, वो 1.5 महीना मेरा खत्म हो गया. They were very kind enough, to guide me, and at least, I was like कि मैं तो उधर बस मुझे वही होता था जब क्लास में डिबेट्स होते थे, I was able to participate. So it was actually a program which was led by there is a professor called Professor Anirudh Krishna. So he was in the IAS in Rajasthan cadre, and then he took VRS after some 16 to 18 years, and then he went to US, and currently he's teaching at Duke University. I think he is a chair professor of the public policy. तो वहां से आने के बाद में फिर मेरा लास्ट सेमेस्टर बस कंप्लीट ही हो गया था जेएनयू में. MGNF उसी समय आया, तो I had no full time workings. तो उस समय क्या था, I was someone told me, so one of my professor over there, IIM Udaipur, her name is Kriti Mishra. So she was the professor of HR, human resources का उधर. तो मैम shared with me, और उन्होंने बोला कि अप्लाई कर दो. तो I told her, because we had a discussion in the campus, तो मैं मैम से काफी बातचीत किया था regarding future prospect, कैसे हो सकता है करियर, ये सब बातें. तो मैंने उनको बोला कि मेरे वर्किंग्स तो है नहीं उसके साथ. शी टोल्ड मी कि यू हैव वर्कड हियर, यू हैव उनका करिकुलम रिगरस बहुत बढ़िया था. मैंने 1.5 महीना में काफी अच्छा किया था. तो शी टोल्ड मी कि डोंट थिंक अबाउट इंटरव्यू. अगर इंटरव्यू तक चले जाओगे तो जो भी एक्सपीरियंस होगा वो उदयपुर वाला कनेक्ट करके, इफ यू आर एबल टू आंसर तो आंसर इट, लेना होगा तो लेंगे, नहीं लेना होगा नहीं लेंगे. somehow yeah, it turned out to be well. और हो गया. मुझे यूपी मिला, यूपी में सोनभद्र मिला. सोनभद्र मुझे उस समय तक कुछ नहीं पता था, and I was very, मुझे जैसे ही I saw the mail and it was सोनभद्र, I was like, वो कितना दूर दे दिया यार घर से, अब तो पता ही नहीं. तो I just opened the Google map, और उसमें मैंने तुरंत डाला कि रांची से सोनभद्र का कितना डिस्टेंस है. It showed 8 hours. I was happy कि चलो ठीक है, अब ट्रेन कनेक्टिविटी भी 8 घंटा है, तो वो पहला था. तो इस तरह से उधर चला गया. इनिशियल डेज जो था वहां पे, मतलब इट वाज अ टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि यूपी में क्या है, जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, इट्स वेरी, आई डोंट नो अदर स्टेट्स में भी आप रेजोनेट करोगे,
वो थोड़ा सा बहुत मतलब फॉर आउटसाइडर पीपल इट डज नॉट गिव मच स्पेस। अगर आप उस ऑफिशियल हायरार्की में नहीं हो तो यू विल हैव अ ट्रबल टाइम। जबकि आप सोचिए उस समय ऑन बोर्डिंग भी हुआ था, सेक्रेटरी वगैरह का लेटर उतर गया था, और हमारे जाने से पहले वीसी वगैरह हुआ था, सब चीज हुआ था, तो वी वेंट देयर। तो खैर लकीली मुझे तो सब कुछ ठीक ठाक मिल गया था, लेकिन काफी अलग अलग स्टेट्स में चैलेंजेस आ रहे थे। ऑफिसर्स कोऑपरेटिव कहीं पे दिक्कत होता, मतलब नेविगेशन हमारे पार्ट में भी वाज, आई मीन फॉर अस आल्सो इट वाज न्यू। बहुत सारे लोगों को कहीं बैठने का भी दिक्कत था। तो उधर मेरे को एक चीज समझ आया, जो मैंने एक चाचा, हम लोग का लास्ट जब ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रहा था, मैंने एक बात अपने दोस्तों के बीच में आई गेव अ वेरी स्मॉल, वहां पे थोड़ा सा लास्ट एंडिंग में हम लोग का कुछ बात रखना था। आई वाज लाइक कि जब आपका बहुत टफ टाइम है एट योर वर्क प्लेस, सो नेवर एवर रीड योर एचआर पॉलिसी, बिकॉज इट विल मेक यू मोर, आप उतना ही ज्यादा दुखी हो जाओगे। और क्योंकि वो सारे लॉफ्टी बातें हैं ना, वो घूम घूम के लगे कि ये है कि ना। तो दैट वाज वन थिंग। पीपल वर वेरी कोऑपरेटिव, आई वुड से। वहाँ पे लोग अच्छे थे। और आई स्टिल रिमेम्बर ऑल ऑफ माय मैनेजर्स, माय एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, माय सीडीओज। सो 3 डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उधर मेरे 2 साल रहने तक आए। सो देयर इज वन पर्सन, मतलब आई वाज वेरी, मतलब उस समय सबके साथ मुझे काम, जब मेरी स्टार्टिंग बॉन्डिंग हुई थी। नाउअडेज ही इज द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ वाराणसी। हिज नेम इज एस राजलिंगम। So he was very fine. I mean, he was able to give space, and वो सब थोड़ा सा he was also guiding थोड़ा। पहले दिन मैं उधर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के साथ गया था। We had some document to be signed. तो 3 घंटा हम लोग बाहर वेट किए। एंड हम थोड़ा जाते थे, कुछ ना कुछ एंगेजमेंट हो जाता था, एंड देन स्टेनो वाज लाइक थोड़ा आप लोग वेट कीजिए। तो मैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के साथ, एंड द डीएम राजलिंगम सर, ही सॉ मी इनिशियली व्हेन आई वेंट। और फिर मैं 4 घंटे के बाद फिर मैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के साथ गया, तो फिर उन्होंने देखा। तो उन्होंने तुरंत, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर थे सर थे, उन्होंने बोला कि आप इनको इतना देर क्यों घुमा रहे हो, मतलब ये फाइल का काम आपको करना है। सो और उन्होंने मुझे बैम्बू के रिगार्डिंग कुछ पूछा, तो मैंने बोला कि सर मुझे फाइल देखना होगा। तो ही टोल्ड मी वन थिंग, सो डोंट गो इन दी फाइल्स, कि आप इसको मत देखो। as a consultant, as a someone who has some inputs which is beyond these files, फाइल तो लिख ही दिए ये लोग, तो वो अगर कुछ आप दोगे तो हमारे लिए काफी बढ़िया। ऐसे करके हो गया, 2 साल निकला। जो हम लोगों ने डीएसटीपी बनाया था, तो कुछ और भी हमारे स्टेट्स में, यूपी के साथ में और भी लोग में, वो टॉप 30 में लास्ट में गया। और सोनभद्र का रैंक 22 में, मतलब वो जब डिक्लेयर किया, वो तो हमारा टेन्योर खत्म हो गया तब डिक्लेयर हुआ। तो इट शोज एमएसडी का स्पीड भी। तो ऐसे ऐसे करके कंप्लीट हुआ। या सो आई वुड लाइक टू, आई मीन कुछ ऐसे बताओ, otherwise it will go on and on. Okay, fine. Again, we'll have a turn on you. So, Srishti and Nitesh, now about your district. Srishti, go first. Okay, all right. Yes, so I'm in Gurdaspur district. It's a border district. It borders with Pakistan. Okay. So eventually, like when it was being decided whether it will go to Pakistan or India, so after independence, it was actually decided that it will be with India. So almost it was going to belong to Pakistan, since majority of the population then was Muslims. So they thought that maybe we can give it to Pakistan. But then I mean, Redcliffe, I guess he drew the map. So he thought that it doesn't look nice. The shape of India wouldn't look nice if we cut the Gurdaspur district out of it. So he told कि ठीक है, इसे India में ही रखो. So I hope we are lucky. I am lucky that it is a part of India. And yeah, so something so famous about here is like a sugarcane crop is grown here largely. I mean, it's the second largest producer in Punjab. So you'll find ganne ka juice everywhere. Matlab, Yeah, same in my district. very oh great. Yeah. So yeah, and Nice. so
There's something which I don't like about is there's no cinema over here. So Oh. I really wish that's weekends pay, I really wish to go outside for thoda dekhne ke liye, but that's the only thing that I don't like. And or here there's no traffic lights in the headquarter. So कोई Oh. traffic lights नहीं है. I belong to Chandigarh, so वहाँ पे तो आप हर मोड़ पे आपको traffic light दिखेगी. So that's a good way. Quite contrasting. So that's a good way. There's no No, traffic light. आप actually, see, जाओ very जहाँ जाना है. recently, I was studying certain experiments in urbanization. Okay, so वहाँ पे traffic management में what they had experiment is if they remove the traffic light, people started behaving more responsibly. But yeah, okay, in Indian context, we know how people drive and how absolutely careless people would be when it comes to navigating the traffic. But then yeah, these are certain experiments being so we can say that Gurdaspur is probably more advanced in terms of yes. Yeah. Exactly. In that sense. But yeah, one more famous thing over here is that it's the only temple in India which has a horizontal shivling. Otherwise, you'll always see the shivling in a standing upright position. Okay. It is the one where it is in a horizontal position. So rare in the world, but the only in India, of course. So yeah. Okay. I'll definitely Google that image because Yeah. yeah. Mage, I don't know you'll be able to get the mage. The temple, definitely you'll get it. That's the Okay. Mahadev temple. And it's horizontal because it's the resting place of Lord Shiva. So that's why it's horizontal. Oh, okay. Nitesh? Historical and religious town, basically. Mhm. Okay. Switch to Nitesh. Okay, so Giridih is like north of झारखंड में है. एंड बेसिक अगर स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा तो इन झारखंड ये थर्ड है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड आफ्टर मतलब फोर्थ है इन टर्म्स ऑफ साइज. सो लाइक गिरिडीह बड़ा भी है और पॉपुलेशन भी अच्छा खासा है, लेकिन वही 90% रूरल है. लेकिन वन ऑफ द थिंग व्हिच यू कैन सी इन द बैकग्राउंड इट्स अ पारसनाथ हिल and it is it's a significant Jain pilgrimage site kind of a thing. So you get two types of tourists जिसको एडवेंचर चाहिए हाइकिंग करना है और अदरवाइज जितने भी जैन जो बैकग्राउंड में दिख रहा है आई थिंक इट इज अ लाइक टॉप पार्ट ऑफ द पारसनाथ हिल जहाँ पे सम्मित शिखर जी उनका मंदिर है. और थ्रू आउट द ईयर टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं. देवघर के जैसा नहीं है लेकिन फिर भी डिसेंट अमाउंट पे काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे. और आई थिंक ये देयर आर 3 कैटेगरीज टाइप ए बी सी डिफाइन करके रखा हुआ है उन्होंने. ये टाइप बी कैटेगरी का है जहाँ पे लाइक नेशनल टूरिज्म काफ़ी प्रिवलेंट. ओके, सो इसको छोड़ के सिग्निफिकेंट मतलब थोड़ा सा कोल माइनिंग होता है, माइका होता है, माइका जिससे हम कॉस्मेटिक्स वो बनाते हैं. और उसको छोड़ के जेसी बोस उनका ये बर्थ प्लेस है गिरिडीह. सो उनके नाम से एक म्यूजियम भी है जहाँ पे कुछ सीक्रेट एक लॉकर रखा हुआ है, उसको आज तक खोला नहीं गया है. उस लॉकर में क्या है, जस्ट हमारे एजुकेशन वो पता नहीं उसके चाबी किसी को मिल देते नहीं है या फिर कुछ तो सीक्रेट है उसमें, फॉर्मूला है या फिर कुछ इक्वेशन लिख के रखे हुए हैं. शायद कोको कोला का फॉर्मूला उसमें होगा. So that's it from the Giridih. Okay. This you should explore, अगर उसमें कुछ ऐसा चीज होगा तो अगर कुछ बड़ा खजाना होगा, we can launch a big fellowship much better than MGNF. बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कभी सीक्रेटली. Okay, Ramesh, talk about both, like your work in Sonbhadra, maybe in short, but now the work you're doing in Gumla in more detail. या तो अभी सोनभद्र में का कॉन्टेक्स्ट इफ यू सी और गुमला का कॉन्टेक्स्ट में तो आई टॉक अबाउट थोड़ा सिमिलैरिटीज और थोड़ा सा डिफरेंसेस क्या है. टोपोग्राफी के हिसाब से you'll see सिमिलर सिमिलैरिटी, क्योंकि सोनभद्र जो है
उसका आप लोकेशन देखोगे तो वो झारखंड के बॉर्डर से टच होता है। ये जो गढ़वा वाला जो है जगह, डाल्टनगंज गढ़वा करके जो इनके डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे देखो वो टच करेगा। और सोनभद्र ही एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है पूरे इंडिया का जो 5 स्टेट्स को टच करता है। तो इट बॉर्डर्स विद केबीसी में शायद ये सवाल आया था उस समय, मतलब पहले ही कहीं पे। तो वो बिहार को भी टच करता है, झारखंड को टच करता है, छत्तीसगढ़ को टच करता है। एमपी का आपका जो एक ये है मिडल रिच एरिया है, क्या एस से कुछ नाम है, मैं भूल गया उसको, तो वो एरिया भी टच करता है। तो वहां पे आपको सोनभद्र में क्या था, सिंगरौली। यस यस, सिंगरौली, सिंगरौली एमपी का। एनटीपीसी सिंगरौली। यस यस, एनटीपीसी सिंगरौली वहां पे। तो वहां पे आपको एनसीएल था, नॉर्दर्न कोयल फील्ड लिमिटेड, मतलब चूंकि कोयल का बहुत बड़ा स्टोर था वो, एनसीएल था, एनटीपीसी। आपको आदित्य बिरला का ये जो अल्ट्राटेक सीमेंट है, इनका 2 प्लांट था वहां पे, इनका काफी बड़ा यूनिट था। उसके बाद में आपको जेपी सीमेंट जो है, जो ऑलमोस्ट मतलब दे आर एट द वर्ज ऑफ डेथ, तो ये भी वहां पे थे। ये ऐसा करके मतलब वहां पे इंडस्ट्रियल पूरा वो टाउन तो था। तो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वो रॉबर्ट्सगंज था। और पॉपुलेशन आप देखोगे तो जस्ट गुमला से डबल है। गुमला का पॉपुलेशन अराउंड 10 लाख है। सोनभद्र का पॉपुलेशन जब मैं उस समय गया था 19 लाख के आसपास था। एंड ऑब्वियसली वी आर डूइंग ऑसम ऑन पॉपुलेशन फ्रंट, तो मुझे लगता है कि काफी उसमें भी तो हम लोग बढ़िया ग्रोथ हो रहा है। तो वहां पे अभी सबसे बड़ा जो चेंजेस थोड़ा सा मैं बोलूंगा, मैं थोड़ा सा खुद का ऑब्जर्वेशन ये देख रहा हूँ कि जो झारखंड की ब्यूरोक्रेसी है, ये इट्स मोर फ्लेक्सिबल। जो यूपी में जो था, यूपी में इट वाज मोर कि जैसे यूपी में हमारा एंगेजमेंट किस टाइप का था। हमारा एंगेजमेंट ये था कि आप सोचो DSDP बनाना है, यानी डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है, ठीक है, फेलो का। इफ देयर वाज अ लेटर फ्रॉम नीति आयोग, ठीक है, इंग्लिश में लेटर थे, तो ऑब्वियसली लेटर जो मार्क हो गया, आप देखोगे लेटर का मार्किंग का एक हायरार्की होता है। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड इट विल फाइनली एंड एट द टेबल ऑफ ऑपरेटर। और जो ऑपरेटर है, यू विल सी, आप एक और नोट करोगे, स्पेशली द कंप्यूटर ऑपरेटर और द स्टेनो बाबू जिनको हम बोलते हैं, ये क्या है इस पूरे सिस्टम का ना, दे आर द मेमोरी। अब द डे, मुझे ऐसा लगता है कि द डे यू वाइप देम आउट एंड योर सिस्टम विल कोलैप्स, दे आर द मेमोरी। बाकी सारा लोग को वो बताते हैं कैसे, एंड यू टेक इट हर तरीके से जैसे आपको लेना है। That's what we learned in the last season of Game of Thrones, I think. तो दैट्स व्हाई उनके साथ बैठने के, आप अगर सबसे ज्यादा आप देखोगे, अगर कहीं से इनपुट एज अ पब्लिक पॉलिसी एंथुसियास्ट स्टूडेंट, अब कहीं सबसे ज्यादा अगर हमें इनपुट मिल सकता है तो दैट इज द वन टेबल। हमेशा ऑल ऑफ यू माइट हैव वो एक्सपीरियंस करके। तो वहां पे हमारे ऑपरेटर जो भी थे, विनोद जी करके थे, ये नाम भी काफी चर्चा में आजकल देख ही रहे हो। तो हमारे विनोद जी बहुत बढ़िया, मतलब ही वाज वेरी 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 जेन्युइन पर्सन, बहुत बढ़िया, मतलब आई वुड से बहुत बढ़िया, काफी कोऑपरेटिव थे चीजों को। तो हमारा खोज हम लोग का उसी समय होता था, कोई अवार्ड के लिए लिखना है, ऐसा ड्राफ्टिंग करना है, इस तरह की चीजें था। देयर वर वेरी फ्यू ओकेजन्स, जैसे एक बार मैं लाइब्रेरी में उधर एंगेज हुआ, आई हैड वन सीडीओ, तो थोड़ा उन्होंने इंटरेस्ट दिया, थोड़ा स्पेस दिया, आई वाज एबल कि थोड़ा ठीक है, एक लाइब्रेरी बहुत टूटा हाल में था, तो बहुत उस पर दौरा, पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया, सर को लेके गया। फिर उधर से सर ने कुछ एमपी लैड वगैरह से फंड वगैरह का कुछ वो करके थोड़ा उस पर काम हुआ। स्किल में आई वुड से फॉर अस देयर वाज वन थिंग, थोड़ा मतलब आई वुड से ऑन माय बिहाफ, थोड़ा मैं खुद को क्रिटिकल होता हूँ कि वी वर इन टू हरी। There was baggage of this IIM Bangalore, a big institution, and then we were told कि ठीक है ऐसा ऐसा कुछ होगा। तो वहां पे हम जाके थोड़ा हम लोगों ने मोरल हाई ग्राउंड ले लिया था, बोला क्या ठीक है, ये सिस्टम तो कुछ काम नहीं करता है, सिस्टम करप्ट है, ये है वो है, फलाना ढिकाना जो चीजें होती है। We were not able to find the patterns। जब मैं इधर थोड़ा अभी जो मेरा एक्सपोजर है, मतलब मैं सीनियर्स के द्वारा जब मेंटरशिप मिलती है, आप जब जाते हो, मतलब अभी जो मेरे सेंट्रल टीम के लोग हैं, DRI में स्टेट के लिए है, तो मोस्ट ऑफ ऑल द टाइम वी वर टोल्ड कि भाई आपको पैटर्न्स पकड़ने पड़े, वो काम कैसे करता है पूरा सिस्टम, वो पैटर्न जब आप पकड़ लोगे, आप चीजों को डिटेल में समझ लोगे, देन यू विल बी एबल कि वो स्पेस कहाँ खोज पाओगे कि जहाँ पे हम इंटरवीन कर पाए।
Oh. क्योंकि वी आर नॉट द ऑफिशियल हु हैव अथॉरिटी कि हम हर जगह, वी आर नॉट ओमनी प्रेजेंट, हम कभी है ही नहीं ओमनी प्रेजेंट, तो हमें तो बस वो जगह बनाना है वहां पे। तो इनिशियली वो चैलेंज हो रहा था, बट क्या धीरे धीरे थोड़ा सा किया। मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को वहाँ इनवाइट किया, जैसे नवगुरुकुल करके एक बैंगलोर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर का ट्रेनिंग करा, आई रीच आउट टू देम। वहाँ जो सबसे मैंने ज्यादा काम जो एक किया, हमारा एक मतलब इट कैन बी ए गुड एग्जाम्पल कि कैसे हम किसी ऐसे जगह में प्लेस कर दिए जाए जहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, तो कैसे स्कोप बन सकता है। मतलब एंड दिस इज ओनली आई एम एबल टू स्पीक व्हेन आई एम लुकिंग हाइंडसाइट। ये स्टोरी इसलिए आई एम एबल टू क्रिएट बिकॉज आई नाउ आई कैन लुक बैक एंड आई कैन कनेक्ट ऑल दोस थ्रेड्स। तो हमारे क्या था वहां पे, देयर वाज वन पर्सन, उनका वो उन्होंने ना ये असिस्टेंट कलेक्टर में उधर ज्वाइन किया था, इनकम टैक्स वाला में करके, जीएसटी वाला में। तो वो स्टेट पीसीएस से उन्होंने ज्वाइन किया था, एंड हिज नेम इज रविंद्र श्रीवास्तव। सर 40s में होंगे, ये उनका तीसरा चौथा एग्जाम था। इससे पहले वो 2 जॉब में और थे, वो स्टार्टेड एज ऑडिटर, फिर उसके बाद वो ये इनकम टैक्स वाला, जो ये इनकम टैक्स तो खत्म हो गया, जीएसटी आ गया, तो उसको उनका पोजीशन होता था समथिंग एडिशनल, कुछ कमिश्नर कलेक्टर टाइप का कुछ ऐसा टर्म था। तो सर वहां पे आए, और जब वहां आए तो उसके बाद में फिर से उनका एक एग्जाम यूपी पीसीएस का ही क्लियर हो गया, और वो फिर वो जाने वाले थे आपको इसमें किसी और डिपार्टमेंट में, तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में तब वो पोस्टेड थे। तो हुआ क्या कि वो डिपार्टमेंट डिफंक्ट डिपार्टमेंट था, लेकिन और जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर थे, ही वाज द हेड ऑफ स्किल डेवलपमेंट। Right. ठीक है, तो भाई भाई बॉस दोनों एक थे, तो मैं उधर जाके बोला चलो भाई, उधर आराम मिलता था, जो वो पहाड़ के साइड में था, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सीडीओ का जो बिल्डिंग था, इट वाज लाइक कि चलो उधर किनारे में रहते हैं, थोड़ा कुछ उधर भी हवा खाते हैं। तो उधर जाने के बाद में फिर क्या हुआ ना कि उनका एक करियर काउंसलिंग होता था, जिसमें उनका एक स्टेट से रेम्यूनरेशन था कि आप ना, जैसे आप अगर मान लो मैं विशाल या वेदांत या मैं सृष्टि यानी किसी को इनवाइट कर दूं, तो देयर वाज रेम्यूनरेशन की आप नॉर्मली जैसे मास्टर्स की हो, ग्रेजुएशन, आपको 500 रेम्यूनरेशन देते थे। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो उसका ज्यादा था, अगर आप जुडिशरी में है, सिविल कोर्ट वगैरह में है, तो आपको 1500 था, ऐसे ऐसे करके चार्जेस थे, उनके पास बजट था। तो हमारे एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर ने मेरे को और उनको सर को बोला कि आप लोग करो। और फिर हम लोगों ने क्या किया, वहां सोनभद्र में सारे हाई स्कूल, पॉलिटेक्निक, आईटीआई कॉलेजेस, इसको मैप करके हम एक एक जगह जाने लगे। वी वर द 2 प्राइम स्पीकर, जिसमें से एक होता था कि आज सर बोलेंगे तो मैं उस दिन नहीं, मैं बोला तो सर नहीं बोलेंगे। सर वाज वेरी वेरी, आई डोंट नो, ही हैड मतलब लॉट ऑफ आई मीन गुड फेथ इन मी, तो वो काफी मुझे मौका देते थे हर जगह। और फिर हम कहीं रिटायर्ड टीचर को, कहीं जो वहाँ पे आपको लेक्चरर लोग थे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो उन सारे को, हमारे पास एक लिस्ट था डिपार्टमेंट के पास में था, तो हम लोग इनवाइट करते थे। कहीं एक प्रिंसिपल उठा के दूसरे जगह लेके जाते थे, कभी हम अपने स्किल मैनेजर को लेके जाते थे। टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड सेशन, काफी बढ़िया रहा। प्रिंसिपल से बात करने के बाद में ऐसा मतलब हम अलग अलग थीम पे सेशन करते थे। मेरा जो मेन कोर होता था, इट वाज मोर इनटू की कम्युनिकेशन स्किल, थोड़ा इंग्लिश पे, क्यूरियोसिटी पे थोड़ा सा कैसे काम करे, उन चीजों, क्योंकि मतलब थोड़ा सा मेरे को लगता है कि वो पार्ट पे उन एरियाज में काफी काम करने का जरूरत था। सर वाज मोर इनटू कि पीसीएस का तैयारी कैसे करें, इट्स अ हॉट टॉपिक ऑलवेज यू सी। तो ऐसा ऐसा करके हमारा काफी बढ़िया वो चीज लगा, इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग। थोड़ा सा एक चीज हमेशा लगता था कि हाँ काफी चीजें कर सकते थे, बट द स्पेस वाज नॉट अवेलेबल हमें। प्लस वी आल्सो हैड दैट टाइम, आई हैड नो आइडिया कि आप इस चैनल्स को कैसे नेविगेट करोगे। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, हमारा 2 साल से पहले एक बार ना, उस समय सेक्रेटरी स्किल थे राजेश अग्रवाल सर, शायद आपकी ऑनबोर्डिंग होगी तो सेक्रेटरी स्किल मेरे को लगता है राजेश अग्रवाल सर। हम लोग के टाइम में व्हेन वी ज्वाइन, इट वाज केपी कृष्णन सर। तो हमारी जस्ट ऑनबोर्डिंग के बाद में ज्वाइन, ही वाज वेरी वेरी टॉल, मतलब काफी, उन्होंने सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी आई एम बैंगलोर में, ही वाज वन ऑफ द कोर फाउंडिंग मेंबर्स। तो राजेश अग्रवाल सर ना हम लोग के साथ में वो बात की, सारे बैच वन के लोग जुड़े हुए थे, वो 1.5-2 घंटा बात चला। ठीक है, हम लोगों ने अपना अपना कहानी बताया, जो दुख था सो दुख बताया। सुख, सेक्रेटरी के सामने आप खाली दुख भी नहीं बोल सकते हो,
तो जो स्मॉल विक्ट्रीज थे, जो भी विक्ट्रीज थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने बताया। सर ने एक बात हम लोग को सबसे लास्ट में एक लाइन का ही बात, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, आई स्टिल मेरे माइंड में इट्स इंस्क्राइब्ड, कि सर ने बात बोला हम लोग को। सर ने बोला कि बहुत प्यार से, वो हरियाणा से मेरे को लगता है, वो हरियाणवी टोन में, कि देखो उसी टोन से जी सो आप देखो ये सिस्टम ऐसा है ना, उन्होंने ऐसे करके हमें बहुत बढ़िया से कहा से, बहुत, एंड इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी वेरी, मतलब क्या ही बोलूं। हम लोग तो ऐसे ही डरे थे कि मतलब पहले सोचते थे कि before we came into this system, we have been conditioned कि भाई IAS कैसे होता है, they behave like that way, he or she behaves, they are like boss। तो ये कहीं ना कहीं हमारे भी जो खुद का आप बोल सकते हो कि प्री कंसीव नोशंस जो था, या हमने जो कंडीशनिंग गेन किया था, वो भी टूट रहा था उस हिसाब से। तो सर ने एक बात बस बोला, सर ने बोला कि ये ब्यूरोक्रेसी हर जगह है, कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेसी है, और ये ब्यूरोक्रेट्स ब्यूरोक्रेसी है। तो उन्होंने एक बात बोला लास्ट में कि to know how to navigate into a bureaucrat's bureaucracy is one of the very vital skill that everybody should cultivate in this country। तो सर ने बोला कि अगर ये 2 साल में, ही वॉज लाइक वेरी, एंजॉय करो यार, खुश रहो आप घूमो, जिला घूमो, समझो, जाओ, काम देखो, लोगों से मिलो। सर ये सब बात हमें समझा रही थी, वॉज नॉट लाइक कि मुझे स्किल का टारगेट तुमने पूरा किया कि नहीं, तुमने DSC कितना किया। हम मीटिंग से पहले हम अपने पास डेटा शीट हम लोग बना के बैठे थे, कितना DSC मीटिंग हुआ, कितना स्किल में हमने इनिशिएटिव ले लिया, कहाँ क्या हो रहा है, हमने कितने सेंटर्स विजिट किए, PMKVY का टारगेट में क्या हो रहा है, PMK के सेंटर्स के क्या सीन, ये सब ये डिड टास्क एनीथिंग। तो ये जो चीज उन्होंने बोली, एंड आई नाउ आई फील कि इस पूरे सिस्टम में अगर ये स्किल एज अ पब्लिक पॉलिसी स्टूडेंट, पॉलिसी मेकर, अगर एज एकेडमिशियन, अगर ये चीजें, ये स्किल अगर हम नेविगेट करने वाला जो पूरा स्किल है इन दिस ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी इन जनरल, तो हम उतना इफेक्टिव नहीं होंगे। ये तो सर ने वो बहुत बढ़िया बात बोला था, तो दैट वाज अ वेरी की टेक अवे। IIM बैंगलोर का बहुत बढ़िया रहा था। अभी यहाँ का जो पोजीशनिंग है, मैं बता रहा हूँ, आई शुड बी वेरी ऑनेस्ट। तो व्हेन आई केम गुमला ना, उधर RDSD में भी काम करके आया, तो RDSD वाज लाइक 9:30 to 5:30 जहां हम जाते थे, और बायोमेट्रिक लगता था, तो यू हैव टू बी ऑन दैट टाइम। तो आप गए उधर, एक कुर्सी पकड़ लिया, और कुर्सी पकड़ने के बाद में काम हमारा, उस समय हम ये भी देखे कि अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस काम कैसे करती है। हमारा काम 2 होता था। एक तो ये होता था कि ठीक है भाई, जो लेटर आया है, तो हमारे वहाँ पे जो एक ऑपरेटर थी, शी हैड वेरी गुड ड्राफ्टिंग, उसने सीख लिया था, बहुत बढ़िया। तो जो लेटर आता था, शी ओनली यूज्ड टू आस्क कि हाँ सर इसमें ड्राफ्ट कैसे करना है, आप उनको थोड़ा सा कोर दे दोगे मैटर, तो शी विल ड्राफ्ट। तो हमारा काम था कौन को लेटर आया उसको थोड़ा जवाब देख लिया जाए, एक। दूसरा ये था अप्रेंटिसशिप मेला, बाद में वो प्राइम मिनिस्टर नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला हो गया। बिहार में 38 जिले थे, तो RDSD अप्रेंटिसशिप की जो नोडल बॉडी है वो RDSD होती है। तो आपको उसी को कोऑर्डिनेट करना था फोन के हिसाब से। शाम में डेटा, शाम 5:30 बजे दिल्ली डेटा पहुंच जाए सही सलामत, तो इट वाज अ सक्सेसफुल इवेंट। एंड बिकॉज माय जॉइंट डायरेक्टर एंड the people who were at the higher मतलब position over there, it was basically manned by director। तो थोड़ा सा ठीक है, अब कैसे ये गूगल फॉर्म से कैसे कलेक्ट होगा, ये सब में वो सब they were very knowledgeable person in their own domain, लेकिन इन चीजों में नहीं था। तो हमारा यूटिलिटी वहाँ काम आता था, तो मैंने वहाँ पे एक नेसेसिटी खुद का डेवलप किया, और काफी बढ़िया बन गया। you know how to juggle the data, कैसे आप उन डेटा के साथ में आगे बढ़ सकते हो, तो तो आप वो कर लोगे। तो ऐसा करके हुआ, फिर मैं 4-5 में, बट आई वाज वेरी स्टैग्नेंट। मतलब मेरा दिन, आप सोचो, शाम का आउटकम यही होता था। RDSD के पास कोई सा बजट नहीं होता था कि वी कैन थिंक ऑफ कुछ नया इनिशिएटिव्स को CSR टैप करने की हमारी हैसियत नहीं थी, जो सच है, ठीक है। Because even the RDSD office, they were not able to pull CSR funds,
तो वो अगेन फिर से वो ना इंडियन सिस्टम में ऑल आर इक्वल्स, बट वो जो बोलते हैं ना सम आर मोर इक्वल्स। तो आप ये देखोगे कि कोई एक सर्विस है, सब सर्विस इक्वल है, क्लास ए सर्विस, बट वंस देयर इज वन सर्विस, टू सर्विस व्हिच इज मोर इक्वल। वो आपको पता है कौन सा सर्विस। तो हम तो उधर सीएसआर वगैरह भी वैसा नहीं कर पाते, जाते थे मिल उल के आते थे। फिर अप्रेंटिसशिप का थोड़ा सा कुछ चैलेंजेस पे सोचे काम करते हैं, कुछ विजिट्स वगैरह करने शुरू किए। 2-4 जगह ऐसे जिला में जाके टहल वहल के घूम के आ जाते थे, ऐसे ही कुछ करके। ये रिपोर्ट बनाना पड़ता था, तो एक बढ़िया सा रिपोर्ट, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट सारा कुछ डालते थे। मैंने तो एक बार बहुत बड़ा हिम्मत कर लिया था, जो नेशनल अप्रेंटिसशिप एक्ट है ना, मैंने बोला उसी में कुछ चेंजेस करते हैं। और मैंने 5 दिन का टाइम लिया, एक्ट पढ़ा, और मैंने एक 1 पेजर रिपोर्ट दे दिया अपने जॉइंट डायरेक्टर। और वो रिपोर्ट देखते ही उसने पढ़ा नहीं, और उसने खाली सब्जेक्ट देखा और मुझ पर गुस्सा हो गया। वो बोले, मुझे एक बात बोले, आई डोंट नो इफ यू विल बी, उसको रिकॉर्डिंग, उन्होंने बोला कि ये क्या तुम बता रहे हो, एक्ट ऐसे चेंज होता है, इट्स अ एक्ट which is being made by the parliament, rectified by the parliament। अभी ये सजेशन करोगे ना, तो जो बिजनेस लॉबी है वो तुम्हारे सेक्रेटरी को भी उठा के लेके बाहर चले जाएगी, और तुम्हें भी लेके चले जाएंगे, और पीछे से मुझे भी लेके चले जाए। ठीक है। अब मुझे तो टच कर गया, मुझे तो वो, आप समझ रहे हो, स्टोन वाज, उन्होंने वो ठीक है जेन्युइन, लेकिन उसमें मुझे तो लग गया, हाउ कैन यू स्पीक टू मी ऐसे। होता है ना भाई, हम लोग सब यंग है, थोड़ा लग जाता है उस तरीके की चीजें। फिर वो कहानी खत्म हुआ। फिर मैंने बीच बीच में डिसाइड कर लिया था कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा, इधर आई टेक ब्रेक और आई एक्सप्लोर सम अदर अपॉर्चुनिटी। लेकिन वहां पे मेरा स्टैग्नेंट, वहां पे एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे, आपको जो अभी आईएसडीएस सर्विस क्रिएट हुआ है, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस, जो 18 में। तो there was one guy, he was from IIT Delhi, so we used to have good talks, थोड़ा सा बढ़िया, थोड़ा उधर जेएनयू आईआईटी दिल्ली बगल बगल में है, तो थोड़ा उस तरह का रिश्तेदारी बन जाता था, थोड़ा बढ़िया। ही वाज गुड, नाइस इनफ टू टॉक टू मी। तो हाँ हाँ, नितेश वांट्स टू से समथिंग। वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट था क्या सोनभद्र? यस, सोनभद्र वाज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। वो और आपका वहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, डीएमएफटी वगैरह भी होगा मे बी। यस इट वाज हैवी। सो यू हैड डीएमएफटी और सीएसआर इतना मोटा कि उधर उन्होंने ना डिस्ट्रिक्ट ने सीएसआर का पोर्टल भी बनाया था। तो माय डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो राजलिंगम सर, ही वाज वेरी वेरी उनसे मैंने देखा कि आप सीएसआर से कैसे मतलब काम बढ़िया से करवाते हो। ही वाज वेरी वेरी मैं उनसे मुझे काफी सीखने को मिला। बट हाँ, मैं ऐसा कुछ मेरा बहुत ज्यादा, आई वाज नॉट एबल टू पुल स्ट्रिंग्स, जिस हिसाब से मैं गुमला में इतना एंगेज होता हूँ, वहाँ वैसा उस हिसाब का नहीं था। वी वर मोर इनटू, ठीक है चलो डॉक्यूमेंट बना दिए, डॉक्यूमेंट देके इतिश्री कर लिए कि भैया हमारा काम तो हो गया। अब वो आगे बढ़ गया, पूछते थे, वो बढ़ता नहीं था, बढ़ गया तो ठीक है। तो ऐसे करके कहानी खत्म हुआ। मैं इधर, फिर मेरा टीआरआई में उसी समय हो गया, बढ़िया था। मैंने बताया रिलायंस फाउंडेशन का भी दिया था, आई वाज मोर एक्सपेक्टिंग रिलायंस फाउंडेशन, क्योंकि उन लोगों ने ना राउंड 3 में 45 मिनट में ऐसे बात किया, तो मेरे को तो लगा कि आप तो ये नौकरी दे ही देंगे। लेकिन they were looking for data guy, तो मेरा ह्यूमैनिटीज का बैकग्राउंड था। one of my friend was fellow med, तो he and few other they was selected। तो कुछ देख रहे थे, इनसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं इनसे सोच रहा था ये मेरे से इंटरव्यू में बहुत बात करेंगे। ये उधर का जो मेरे इंटरव्यूअर थे, तो वो ऐसे ऐसे इधर ऐसे ऐसे करके मुझसे कुछ सवाल पूछ ही नहीं रहे। मैं जबरदस्ती उनको बताया जा रहा हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ठीक है, ऐसा किया वैसा किया। उन्होंने 2-4 सवाल मुझसे पूछे कि मुझे बताओ कि आपका डीसी आपकी बात नहीं मानेगा तो कैसे, उसे कन्विंस कैसे करोगे, तुम कुछ करना चाह रहे हो। एक वो सवाल उन्होंने पूछा। दूसरा ये बोला कि यार, मतलब वो लगातार मेरा पेशेंस चेक कर रहे थे कि अब मैं कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहा, शायद वो ये कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा। खैर इधर हो गया। और गुमला भी देखो संयोग से, इट वाज लक। अच्छा, हमारे पास टाइम का बहुत थोड़ा पॉजिटिव वगैरह होगा तो डू लेट मी नो, हाँ बिकॉज yes, इट्स अ फ्लो। because so this part like जो या अभी TRF रोटेशन है में ये, रखते हैं बट हाँ टाइम yes का yes नहीं yes yes देता yes है, yes yes। it should not be very long ऐसा थोड़ा, Okay, it has to be हाँ very equitable। so but then now लेकिन I'd like सब क्या मैं मतलब लंबा जा सकता है, कोई लोड नहीं है, वी कैन हाँ गो हाँ, मतलब लॉन्ग, you guys are बट वो comfortable, सर्कुलेटिंग रखते हैं थोड़ा। चलेगा। So okay, now I would like to switch to Nitesh, but then after that, Srishti, so I follow your LinkedIn post and really like those product teardowns that you do. So if you could share your screen after this, I would really appreciate. I mean, all the viewers would love to see how you are doing. Okay, so but then first of all, Nitesh, ओके क्या ओके what मेनली work? लाइक
my initiative in the district, right? Yeah. यस कुछ भी मतलब इन जनरल पर्सनल ओवरऑल कोई एक्सपीरियंस एंड व्हिच ब्रिंग्स आउट तुम्हारा वहां का एक्सपीरियंस. Okay. So बेसिकली राइट आफ्टर द इंजीनियरिंग मुझे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था ब्यूरोक्रेसी कैसा होता है, तो लाइक फर्स्ट डे मैं गया और वहाँ पे जो क्लर्क है, क्लर्क को तो फिर भी सर मैं बोलता हूँ, जो साफ वाफ करते हैं या फिर जो फाइल वाइल इधर लेके जाते हैं उनको भी मैं सर बोलता था. तो उतना लाइक न्यू टू दिस सिस्टम वो उस टाइम पे था बहुत. लेकिन जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था, लेबर सुपरिटेंडेंट का ऑफिस था वो, लाइक उनको एडिशनल चार्ज मिला था एज ए डिस्ट्रिक्ट स्किल ऑफिसर. सो शुरू के 3 महीने मैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा वो ये था कि सारा फाइल वगैरह देखना है और कैसे उनका काम चल रहा है, तो वो जम के मुझसे काम वाम करवाते थे. और जहाँ पे भी उनका ऑफिशियल लाइक रिप्रेजेंटेशन रहना है, अगर कुछ मीटिंग में, क्योंकि एज ए लेबर सुपरिटेंडेंट उनको कहीं पे भी बुलाया जाता था तो फिर आई एम एबल टू रिलेट विद दैट थिंग क्योंकि लास्ट लाइक थर्सडे और मतलब लास्ट 3 डेज में मैंने सिर्फ मीटिंग अटेंड करी है 10 जगह जाके, बस मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ. करना कुछ नहीं होता है, जाके केवल सिग्नेचर कर देना होता है, मार्क मतलब हम प्रेजेंट है, तो दैट काइंड ऑफ वर्क. बट स्टिल लाइक वो एक्सपोजर मिल रहा था कि एग्जैक्टली स्किल का काम नहीं कर रहे, लेकिन देख रहे हैं कुछ तो हो रहा है, कुछ पता चल रहा है. और उस टाइम पे राइट नाउ अभी जो डीसी रांची हैं वो हमारे डीसी थे. तो लाइक आई थिंक पूरे 3 मंथ्स में उनका ट्रांसफर हो गया था. तो इनिशियली मैंने उनको जब रिपोर्ट किया था कि सर मैं एज ए फेलो आया हूँ, आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मिनिस्ट्री का है, फिर आईएम का है वगैरह वगैरह बोला, तो उन्होंने बस देखा, हाँ ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो हमको बुलाएंगे, ऐसे बोल के चले गए. और उसके बाद जस्ट उनका ट्रांसफर होने से 10 दिन पहले उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी मीटिंग करवाया, और लाइक वो फर्स्ट मीटिंग था. उसके बाद जस्ट एक मीटिंग हुआ है, और लाइक तो उनका जस्ट शॉर्ट टाइम पे 3 महीने पे केवल एक ही मीटिंग हुआ था. लेकिन ओवरऑल फ्रीडम मेरे पास बहुत ज़्यादा था क्योंकि डीसी के साथ इंटरेक्शन नहीं था. तो जिला पूरा घूमो, और मैंने नया बाइक ले लिया था यही डिस्ट्रिक्ट पे, तो हर एक ब्लॉक और जो भी इंटरेस्टिंग प्लेस है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ डेली चल जाता था. और संडे पे तो मैं लाइक छोड़ता ही नहीं था और अगर किसी दिन वीकेंड है, छुट्टी वगैरह है, तो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट भी चले जाओ, बस बता के चले जाओ कि कहीं बाहर जा रहे हैं करके. उसके बाद लाइक चेंज हुआ सिस्टम जब अभी करंट डीसी नमन प्रियेश लाकड़ा वो आए, और उन्होंने 3 दिन वेट करवाया मिलने के लिए और फर्स्ट दिन ही बोला कि इलेक्शन पंचायत इलेक्शन आ रहा है, तुम मुझे हेल्प करो. तो उसके बाद से लाइक इलेक्शन का काम लाइक ऑलमोस्ट 50 डेज काफ़ी ज़्यादा उनके साथ लाइक मिल के काम किया. और उसके बाद ऐसा हो गया कि डेली उनके साथ इवनिंग ब्रीफिंग या फिर कुछ प्रोजेक्ट दे रहे हैं, स्किल का दे रहे हैं या फिर कुछ और भी दे रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वो कॉन्ट्रास्ट था. और अभी तो ऐसा ओवरवेलमिंग हो गया कि मैं मतलब इनडायरेक्टली उनको बोलता हूँ कि सर थोड़ा छुट्टी दे दो इधर उधर जाना है. अदरवाइज मतलब डिस्ट्रिक्ट अगर छोड़ के भी चले गए तो भी यू विल गेट 10 कॉल्स कि ये काम होना है, उनका कोई ऑपरेटर कॉल करेगा, कोई और लाइक कुछ भी प्रोजेक्ट करो तो वो वैसा सिस्टम हो जाता है. अभी काइंड ऑफ वो हॉलीडे मूड पे हूँ, इसलिए अभी आरडीएसडी का इवेंट करने के लिए आया, रांची के कैंपस में हूँ. और लाइक आई थिंक अंडर नमन प्रियेश सर मोस्ट ऑफ द एफर्ट ये था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जिनको भी स्किल का नहीं पता है तो उनको वो चीज़ काफ़ी थोड़ा सेंसिटाइज किया जाए. क्योंकि एनएसडीसी के अंदर मतलब लिस्टेड बहुत सारे ट्रेड्स है, फिर भी कुछ इनोवेशन करना है तो उतना लोग मतलब ऑफिसर सोच नहीं पाते हैं, कुछ ट्राई आउट नहीं कर पाते हैं. तो मैं ट्राई करता हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है स्टिचिंग छोड़ के, या फिर गिरिडीह एज ए सोलर सिटी वो डिक्लेयर हुआ है,
तो मेरे को पता है कि सोलर का ट्रेनिंग में भी कभी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी फोर्स करता हूँ कि सर हम एक प्रपोजल बना के भेजेंगे। ये स्पेशल प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए मैंने सोलर वो सिलेक्ट किया था। उसका अराउंड 60 लाख का कुछ ऐसा फंड बनाया था। उस टाइम पे डीसी सर ने भी वो भी काफ़ी वो खुश थे कि हाँ, चलो ऐसा कुछ हो रहा है, हमारे कुछ नया ट्राई कर रहे हैं उस टाइप का। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड एक्सपीरियंस है मेरा, लेकिन मोस्ट तगड़ा ऑफ द थिंग एक्सपीरियंस है भाई। हाँ, इलेक्शन आई थिंक वगैरह की ड्यूटी मतलब सरकार में वो लाइक बहुत ज्यादा हार्डकोर ड्यूटी हो गई और तुमको हाँ, मिल गई हाँ, इतनी जल्दी। अरे उसका तो और वो भी पेमेंट भी मुझे पंचायत मिला। इलेक्शंस, हाँ, हाँ, और ज्यादा बकचोदी होती है वहां पे। बहुत बहुत ज़्यादा है। लाइक एक एक अलग से उसका एक बढ़िया है एपिसोड बन सकता है कि इलेक्शन में क्या-क्या काम किया था, लेकिन सच काफ़ी में, ज़्यादा वो लिटरली। I लाइक आई also वोंट worked in elections, but I think it was a good हम्म। experience. It wasn't कि मतलब हाँ थोड़ा hectic था, but मुझे मजा आया. So I think it was a आई थिंक प्लीज ब्रिंग वन मोर, कुछ एनेक्डोट्स बताओ दोनों भी लोग ना, कि आई वुड लाइक टू हियर मोर, मतलब ऑल पीपल वुड लाइक टू हियर मोर ऐसे Yes, yes, फ्रॉम यू। election anecdotes. अच्छा election. एनेक्डोट्स नहीं, जस्ट एक ओके, पहले सृष्टि बता दो फिर मैं बताऊँगा। Okay, okay, all right. So yeah, I think I was maybe so naive. तो मैंने वहाँ पे जो इलेक्शंस के लिए ड्यूटी के लिए आते हैं टीचर्स एंड बाकी स्टाफ, तो वो नेक्स्ट डे काउंटिंग थी और वो पिछले दिन की हमें नहीं करनी है, कोई ड्यूटी कटवाने आ रहा है सर के पास, कोई ऐसे हो रहा है। और मैं वहाँ बैठ के आई वाज आल्सो विद लाइक वी देयर वर टू फेलोज एंड हम सर को के साथ सपोर्ट करते थे। और मैं उन्हें कह रही हूँ कि इट विल बी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू, आप कर लो ड्यूटी आप सीखोगे। Now I realize ki, what was I saying then? They have been doing it for so many years and they don't want to do it now because it's really hectic the entire day and I can understand what they go through. So, but then maybe I was excited ki I was getting to learn so much, so I thought it applies to them as well. They'll also get to know ki kaise counting ye sab kaise hota hai. So I was like, the other fellow was telling me ki, what are you saying? He was laughing at me ki they don't think in the way we think, yes, सीखने को मिलेगा and all that. So I can understand that situation now. Yeah, Nitish. चंडीगढ़ की लड़की आके बता रही है सीखने को मिलेगा, और दो चार गाली दे के गए होंगे वहां पे। Yeah. ज्ञान बांट रही है। आई थिंक लाइक बिगेस्ट पॉइंट ये था कि इलेक्शन एक तो बहुत टाइट सिचुएशन है, मतलब जो चीज होना है तो वो होना है, बैलेट पेपर लेके आना है और डिस्पैच करना है तो वो होना है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास मतलब काफी ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर है, और बाकी सारे ऑफिसर को भी पता है कि कितना ज्यादा प्रेशर है। उस टाइम पे कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। जो भी आ, हम लोग को कंप्यूटर पे जस्ट आई थिंक जिस दिन वोटिंग होना है उसके एक दिन पहले ऑल दी पीपल लाइक अराउंड 3000 4000 लाइक वर्कर या फिर जो स्टाफ है उनको ड्यूटी पे भेजना है। तो उनके लिए सफिशिएंट मटेरियल, वो इंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ प्रिंट हम लोग करते थे। तो रात 3 बजे तक हम लोग वो फाइनलाइज करते थे, और बड़ा सा बॉक्स मतलब पेपर वेपर सारा कुछ कम्युनिकेशन प्लान वगैरह, जिसपे फोन नंबर अपने टीम का, क्योंकि उनको पता भी नहीं होता था कि हमारे टीम में कौन कौन होंगे, सिक्योरिटी गार्ड या फिर सिक्योरिटी के पुलिस होंगे, कोई टीचर होगा, कोई बैंक का स्टाफ होगा। तो उस पे एक भी मिस्टेक नहीं कर सकता, और वो मिस्टेक हुआ तो फिर से बैंड बज जाएगा, मतलब पोलिंग बूथ का। तो ऐसा प्रेशर होता था। तो सभी जितने भी ऑफिसर्स है, लाइक 50 डिफरेंट ऑफिसर, मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट है, तो उनके साथ काम करने को मिल रहा है, तो वो हायरार्की आई थिंक वो ब्रेक हो जाता है। तो उनके साथ काम कर रहे हो, वो सोच नहीं रहे कि फेलो है, नया है, उसको कुछ आता है नहीं आता है। तो आई थिंक वो उनको जब एक हेल्पिंग हैंड मिल रहा था इलेक्शन पे, तो वो अच्छे से कंसीडर कर रहे थे, और ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे थे कि फेलोज है, कुछ नहीं आता है, इसको ऐसे उल्लू बना दूंगा या ऐसे कुछ भी। और साथ में आई थिंक मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ काम किया था, क्योंकि कंप्यूटर सेल पे वी हैव टू लाइक एक्चुअली राइट और टाइप आउट लॉट ऑफ थिंग्स। तो जितने भी डिपार्टमेंट के कंप्यूटर ऑपरेटर थे, तो सबके फोन नंबर, सबके साथ इंटरेक्शन हो गया। और अभी भी ऐसा इंटरेक्शन है कि ऑफिस चले जाऊं तो हाय सर, हेलो सर, कैसे हैं, और जस्ट वैसा
मतलब रेपो बन गया है, तो आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल था। और उसके बाद से ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ जिस पे इतना बड़ा टीम मिलके कुछ काम कर रही है। सो दैट वाज द वन थिंग। Okay. Srishti? Yes, so Yes. I'll talk about recently. It was, yeah, project for opening of the Hunar Haat by Phil Brooks. Mhm. So there was a initially abandoned place. So DC sir spotted that and he said, "Let's go karenge. Like we'll convert it into a showroom for SHGs to sell their products." And so he told me to do a bit of basic research. What all products they sell? Is it Mhm. competitive? Is the quality good and everything? So I did that, and then eventually we opened the shop. थोड़ा renovation करवाया सब. Products की भी हमने packaging branding we did under the name of Abad, which is an initiative by a district, meaning absolute border area development. So we focus on the border villages of the district and we want them to develop absolute. So under that, so हमारे brand name जो हमने products brand name under Abad हमने करवाए हैं to Mhm. give it a like district पे recognition देने के लिए. And then so we have placed them in the shop and वो सब करवाया. So that was a learning experience ki how first like planning पूरी project की करनी, then implementation, connecting with SHGs, BPMs, DPM, everyone. And now to see the shop closed once, to see it's generating revenue for the groups. So that's like fulfilling inside. So Okay. yeah, that was. और जो कभी कभी गिफ्ट्स देते हैं SHGs, I just love that. Yeah, true love. Yeah. So Yes. would you like to share those product teardowns that you do on LinkedIn with us? Like maybe Uh, I've given you access to share your Screen screen. share. yeah, sure. Yeah. Okay. So this is actually I started. I joined a course. You can Mhm. see my LinkedIn. No? Yeah. So I'll share. Hmm. So I'll share one of the product teardowns. Cool. So I Yeah. started a course on Mhm. learning product management just Uh-huh. 2 months ago. So it is a part of that course. So there's a Okay. challenge they as a part of the course. So as part of the challenge, I have done the 6 teardowns in 6 weeks. Okay. So this is one I on Spotify, how the recommendation system of the Spotify works. So this is general about the overview of the Spotify, what it is, how it generates revenue, it's all the business model. Okay, Shubhita. और ये भी बताओ इंक्रीमेंट का क्या सीन होता है? So yeah, Vedant, you asked a very important question, you know. I mean, it I should be think the most important question for batch 2 for the Nitesh has another question. हाँ नितेश हाँ जस्ट रमेश, मतलब उनसे रिक्वेस्ट है वो कंपेयर करना, मतलब कैसा डीसी वहां पे था, मतलब सोनभद्र में और गुमला में राइट yes नाउ, या sure फिर सुशांत सर से पहले? yes definitely I would like to compare थोड़ा सा वो shit ठीक पहले वो इंक्रीमेंट पे बात कर लेते हैं. ठीक ओके। तो अभी इंक्रीमेंट का सीन क्या था, IMB ने जो वो डिजाइन किया, इट वाज वेरी फॉर अस इट वाज वेरी कंट्रोवर्शियल क्यों हुआ था, क्योंकि जो बहुत सारे असेसमेंट्स हुए थे ड्यूरिंग आवर एकेडमिक मॉड्यूल्स, ठीक है, और प्लस हमारा फील्ड एंगेजमेंट सबसे ज्यादा था. भाई आप एक पूरे क्वार्टर हो एंड यू आर ओनली देयर फॉर अ फोर्टनाइट, ठीक है. तो लेकिन इन्होंने क्या किया कि जब 1 साल के बाद असेसमेंट लेके आए तो ये बोले कि हम जो असेसमेंट के एग्जाम लिए हैं वही हमारा कोर होगा. वी आर नॉट गोइंग टू टेक इनटू अकाउंट कि आपने जिले में क्या किया है. What is the feedback of your CDO? CDO is DDC. What is the feedback of your DM फलाना, ये सब your initiatives, ये सब चीजों पे जो कि एक रेगुलर इंटरेक्शन था देवर अवेयर. तो हम लोगों ने इस पे we registered protest. We said कि no, this is not something, this is not fair. तो हमारे कोर्स डायरेक्टर का करना था कि डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इन आवर डोमेन, वी आर नॉट देयर टू हम वहाँ पर नहीं है, ये वो बहुत सारा हम एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, ऐसे ऐसे करके इट वाज अ चैलेंजिंग. फिर उन्होंने ABCD कर दिया एंड मतलब आई वुड से वो प्रोसेस स्टिल मतलब it was not a fair process for all of us because there are people
who are who are put into उस कैटेगरी में जहाँ पे उनको नहीं होना चाहिए था, ऐसा करके भी लोग था. I And heard stories yeah. from Urvi Waghela. yeah, First time मतलब मिले थे RDSD में यहाँ पे. Yeah, yes. So it was really disappointing, and especially it was disappointing in a sense कि IMB का क्या है, उनका क्राइटेरिया था कि कुछ भी हो जाए, हम जो टॉप 25% है शुरू का उनको ग्रेड ए देंगे, फिर बी देंगे, फिर सी, ऐसे करके डी देंगे. अब आप टॉप 25% उनका पीजीपी में भी वैसे ही होता है. तो उन्होंने पूरा हमसे वो शीट शेयर किया. दे वर वेरी डेमोक्रेटिक. वो बहुत अप्रिशिएबल था. I mean, our professors, course director, both Professor Mukherjee and Professor Sankarsan Basu, they were very nice. I mean, we used to have one session जिसमें हम, अब आज उसका चर्चा ही था कि इस पे मुद्दा पे बात होगा. He used to listen, and then he has his own, because by the time he was not only professor, he was an administrator also, because he was manning the program. And it's not easy to overcome the reasonings of an administrator. They do their homework very well. तो ऐसे करके था. खैर वो सही हो गया, कंप्लीट हो गया. We accepted and we moved, but we moved in most of us. I mean, I would say at least 95% of the cohort people were not happy. 5% if they were happy, nobody knows. मुझे भी नहीं पता. तो ऐसे करके था. It was, but हाँ, जब हमारा ग्रेजुएशन सेरेमनी हुआ तो 74 we started, 69 we graduated. That was a very good. वहाँ पे ऐसा रहा. फिर प्रोफेसर ने पूछा कि कन्वर्जन रेट कैसा रहा, जो पूरा एक बोलते हैं ना कन्वर्जेंस का जो पूरा पार्ट था. तो वो जो अपोजिट जेंडर का कन्वर्जेंस हुआ कि नहीं. बट ऐसा करके तो सक्सेसफुल इट वाज ओनली 1 or 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस, सिर्फ ऐसे करके. हाँ, बाकी तो इट वाज लाइक, मैंने प्रोफेसर को बोला है कि एटलीस्ट वी हैड वेरी फ्यू केसेस एंड वी विश कि शायद ये रेप्लिकेट हो बैच 2 में, बहुत बड़े स्कूल में. तब तक बैच 2 का तो बात ही चल रहा था. अभी मैं करंट असाइनमेंट का मैं बात बोलूँ तो मैं जब गुमला इधर आया, एक्चुअली मुझे जाना था छत्तीसगढ़ में, बट ड्यू टू लास्ट मोमेंट ऑफ सर्टेन डेवलपमेंट्स मुझे अचानक लीडरशिप ने बोला कि आप यहाँ से हो, आपने रांची में टाइम बिताया है, वुड यू लाइक टू ज्वाइन गुमला. फिर मैंने यहाँ ज्वाइन किया. और आई शुड बी वेरी ऑनेस्ट कि जो हम उधर काम करके जिस हिसाब से हमने एक स्पीड पकड़ा था ना कि हाँ ठीक है, हम सोचेंगे, विचारेंगे, हम ड्राफ्ट करेंगे, हम काम करेंगे, ड्राफ्ट दे देंगे. मेरे जो अभी डेप्यूटी कमिश्नर है सुशांत गौरव, so he's a 14 बैच IAS, तो इनका स्पीड अलग था. तो मैं इधर आया तो मैं उस स्पीड से काम स्टार्ट किया. मैंने स्टार्टिंग के 15 दिन आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जिला में. मुझे वो काम दे दिएगा तो उसके साथ मैं लग के यही सब कर रहा हूँ कि ठीक है, जब पोस्टर डिजाइन करेंगे, डिपार्टमेंट साथ स्पोर्ट्स का हो रहा है, किस का हो रहा है, ये सब. One day sir called me after it was I think more than 15 days or something, और उन्होंने मुझे बताया आप क्या कर रहे हो बताओ मुझे. मैंने बोला सर आजादी का अमृत महोत्सव करा रहा हूँ. ठीक है, बोला कि और क्या कर रहे हो. तो मैंने और एक दो इधर उधर कुछ बोला जो भी. सर ने बोला कि आप मुझे मल्टी डिमेंशनल आंसर दो. यू आर अ सीनियर फेलो हियर, आप मुझे वैसा आंसर दो. आप एक जूनियर फेलो जो बिगिनर होता है, जो ग्रेजुएट करके मतलब वो मतलब है ना, वी हैव एन नंबर ऑफ लेवल ऑफ फेलोशिप्स. जो बिगिनर जैसे यूसी गांधी फेलोशिप वगैरह इनिशियल स्टेज के फेलोशिप्स है वो. तो मुझे उस हिसाब के आप आंसर मत दो. मुझे बताओ कि तुमने हेल्थ में क्या किया, आपने हेल्थ में क्या किया, एजुकेशन में क्या, एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है, और अदर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट जो भी है उसमें क्या चल रहा है. मैं तो डर गया. उन्होंने मुझे बोला कि 2 काम दिया, बोला कि मुझे 3 दिन में बताओ काम होगा कि नहीं होगा आपसे. मैं लिया खट से उधर रेस होना शुरू किया कि अच्छा ठीक है करते करते. तो मुझे थोड़ा टाइम लगा इनके स्पीड कैच करने में, बट मैंने अपने माइंड में एक हेड में एक ले लिया था कि आई हैव टू कैच स्पीड ऑफ दिस मैन, और मैं छोड़ना पड़ेगा. ये 2 में से एक ऑप्शन. आई टुक द फर्स्ट वन. और फिर मैं बता रहा हूँ लास्ट 8 month आई ज्वाइंड गुमला ऑन August 1st, और March 24 PM अवार्ड्स के रिजल्ट्स हमें पता चल गए कि वी हैव वॉन द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड. इस पूरे इतने दिन के ड्यूरेशन में आई टुक ओनली one time holiday. It was a 3-day holiday where मतलब I had to go to my village.
और जो रेस्ट थे संडेज को, तो मैं रांची, मेरा घर में मतलब मम्मी पापा रांची में रहते, फैमिली लिव्स इन द रांची व्हिच इज ओनली 100 किलोमीटर अवे। तो मैं संडे जाता था, सुबह 10-11 बजे गया, फिर अगले दिन सुबह भाग के आया, और एक दो मेरे को लगता है बीच में ओकेजनल आफ्टरनून का लीव या कुछ लीव होगा जो मैंने सर को ऐसे रिक्वेस्ट करके ले लिया। एंड पीएम अवार्ड की चर्चा करना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक्चुअली में वी आर 3 member टीम हियर। सो मी working as a PPI fellow, there is MGNF batch 2, his name is Avinash, there is another guy called Ashish, so he works in the health, so we are 3 member team here। और हम सर के मतलब ऐसे बहुत कोर टीम काम करते हैं, मतलब सर हैज गिवन एक्सेस टू हिमसेल्फ एंड द सिस्टम कि हम सुबह से शाम तक मतलब सर से 4-5 बार मिलते हैं। मॉर्निंग ही एंटर्स इन द ऑफिस, वी गो एंड मीट हिम, ठीक है, वी डिस्कस कि अच्छा ये काम करना है, सर गिव्स अस सर्टेन इंस्ट्रक्शंस कि अच्छा ये करना है। फिर आफ्टरनून में वी मीट, इवनिंग में मिलते हैं, शाम में मिलते हैं, ऐसे ऐसे करके मतलब वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। और जब पूरा पीएम अवार्ड का प्रोसेस चल रहा था तो सर यूज्ड टू कॉल अस ऑन संडे आल्सो, जो उनका रेसिडेंशियल जो यूपी वगैरह में बोलते हैं ना कैंप ऑफिस जिसको होती है, गोपनीय बोलते हैं उसको। So that's जो उनकी आवास पे रेसिडेंस का ऑफिस होता है। तो he'll drop a text in the morning Sunday कि let's meet at 11:15, ठीक है। एंड भाई हमारे पास तो कोई चॉइस थोड़ी है। तो ये पूरा जो प्रोसेस हुआ पीएम अवार्ड का, तो आई वुड से 3 of us, I mean along with the district जो भी डिपार्टमेंट हेड्स थे। तो आप एक चीज देखोगे, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो पोजीशनिंग जो मैं बोला शुरू में, तो होता ना इकोनॉमिक्स में जो एक सिग्नलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, तो सिग्नलिंग उन्होंने जिन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट उनको नोबेल मिला। तो वो एक बात बोलते हैं कि आपकी एजुकेशन, आपकी लैंग्वेज, मतलब इट इमिट्स अ सिग्नल। फॉर एग्जांपल आई एम सिटिंग हियर, माय बैकग्राउंड एज एन MGNF फर्स्ट बैट, इट इज इमिटिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ सिग्नल टू ऑल ऑफ यू। फॉर यू आल्सो मैं एक सिग्नल रिसीव कर रहा हूं कि हाँ ये मेरे फेलो मेट्स हैं, वी हैव अ बॉन्डिंग एसोसिएशन। तो आप देखना कि जब डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जैसे सृष्टि ने बोला है या फिर नितेश ने बोला कि जब वो आप क्लोज रखते हैं, दे गिव यू स्पेस कि ठीक है जाओ आप ये काम करो, तो इट गिव्स अ सिग्नल टू एंटायर मशीनरी कि लुक ये बंदा जो है या ये जो बंदी है ये सर का काम कर रही है, मैम का काम कर रही है, लेट्स कोऑपरेट विद देम। इफ दे लाइक यू तो भी कोऑपरेट करेंगे, इफ दे डोंट लाइक यू तो भी कोऑपरेट करेंगे। दैट्स द सिग्नलिंग इफेक्ट लीडरशिप लेवल पे होता है। तो बिकॉज देयर इज अ सिग्नल कि जो ये 3 member टीम है, वी वर्क वेरी क्लोजली ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ सर। और तो हम बहुत मतलब हम किन्हीं भी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेड्स हो गए, किन्हीं को भी जब होता है कुछ किसी भी चीज का रिक्वायरमेंट तो उनको टेक्स्ट करते, कॉल करते हैं, वेरी पोलाइट एंड वेरी वेरी कोऑपरेटिव। तो पूरे 8 अभी हम लोगों ने अक्टूबर में प्राइम मिनिस्टर्स का पूरा जर्नी स्टार्ट किया। ड्राफ्टिंग हमारी अक्टूबर में हुई और नवंबर को 28 नवंबर डेडलाइन था, उस दिन हमने सबमिशन किया। फिर लाइक टिपिकल गवर्नमेंट सिस्टम, जब आप सबमिट करने जाओगे तो डेडलाइन बढ़ जाएगा। तो 28 नवंबर को हमने सबमिट किया, 6 दिसंबर डेडलाइन हो गया, बट वी वर डन। तो वो पूरा प्रोसेस में किया और हम लोगों ने 3 कैटेगरी में अप्लाई किया था। सर का एक बहुत बढ़िया चीज जो हम लोग को काफी मतलब वी कैन से आई मीन बहुत हमारे लिए बढ़िया लर्निंग पार्ट ये रहा कि हमने उनके साथ टाइम बहुत स्पेंड किया। When you spend a lot of time with your mentor, with your someone, मतलब your boss, मतलब जो उस तरह के थॉट प्रोसेस रखते हैं, तो you learn a lot। तो सर के साथ में अभी क्या था कि हम ड्राफ्ट जब करते थे, we used to go, सर उसको देखे, he is reading and then he is like नहीं ये तो नहीं होगा, अभी कुछ और सोचो, कुछ और करो, कुछ और करो। Sometime he made us jot it down, he was like narrating, ठीक है 2 पैरा नरेट कर रहे हैं कि वो डालो, बाकी उसमें और क्या एडिशन कर सकते हो। तो हमने रागी को अपना मेन थीम बनाया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रागी था। फिर वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद ये हिट करेगा, ठीक है, तो शायद ऐसा हम लोग सोच भी रहे थे एंड इसने हिट किया। फिर हम अलग राउंड्स में गए, बेनिफिशियरी से उनको चेक करना था, फिर एक प्रेजेंटेशन सर को देना था नीति आयोग की जो स्टीयरिंग कमेटी थी। अब सोचो कि उस प्रेजेंटेशन को, फॉर एवरी प्रेजेंटेशन देयर वाज अ राउंड ऑफ 3 to 4 days स्लीपलेस नाइट। क्या वो सर बना रहे हैं, पीपीटी बनवाते थे, हम लोग बनाए लेके गए, नहीं सर बोले नहीं ये तो नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं निकल के आ रहा है इसमें।
फिर ही यूज्ड टू गिव अस सजेशन कैसे ये करना, फिर ऐसे ये करना, मतलब इट वाज राउंड एंड राउंड। तो ओनली जब वो डे आ जाता था वी वर रिलैक्स्ड कि चलो आप तो आज ये डन डस्टेड है। तो सर ने उधर जाके प्रेजेंटेशन दिया, फिर सेंटर की एक टीम आई, 2 लोग की एक टीम आई थी। तो आप सोचो कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखे ही होंगे कि जब एडमिनिस्ट्रेशन प्लान करता है तो यू नो देयर इज यू हैव टू कीप द मार्जिन ऑफ एरर वेरी वेरी लेस वहां पे, बिकॉज it's a kind of showcasing you whatever you have done, वो उतने दिन में उतने टाइम में दिखा देना। 2 दिन के लिए वो आए हुए थे, नहीं दिखाए तो खत्म हो गया कहानी पूरा। तो हम लोगों ने उसमें सर हमें पूरा स्पेस देते थे कि आप 3 लोग प्लान बनाओ, कौन कौन से साइट्स उनको हम विजिट कराएंगे, फिर सर उसमें ऐड ऑन कर देते कौन कौन से जगह हम उनको लेके जाएंगे, हमारी स्टोरी क्या होगी, वहां पे के प्रिपरेशंस क्या होंगे, मोबिलिटी का लॉजिस्टिक्स का इश्यू कैसा होगा, हम किस हिसाब से मोबाइल होंगे कि यू नो ऑन अ वेरी स्मॉल टाइम में। तो एंड ये प्लानिंग हम कई दिन कब करते थे, रात में 8 बजे सर बुलाते थे गोपी, एंड वी यूज्ड टू सिट हिम उनके साथ रात के 10:30 बजे तक, 10 बजे 10:15 बजे। फिर हम निकलते थे उधर, और फिर उधर जाके हम थोड़ा जो एनवायरनमेंट में थोड़ा पॉल्यूशन का जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है थोड़ा, तो वो हम कोशिश करते थे कि उसको भी हम लोग थोड़ा यू नो इट वाज लाइक यू हैव टू रिलीज समथिंग, हम बातचीत करते थे। और इट वाज नॉट ऑल द टाइम वेरी यू नो वेरी फ्रेंडली टॉक, मतलब देयर वर टाइम्स देयर वाज सॉर्ट ऑफ यू नो हमारे बीच में ही थोड़ा सा कभी उठापटक जो चीजें होती है ना कि ऑब्वियसली बिकॉज वी वर अ टीम वी आर वेरी क्लोज, सो ऐसे चीजें चलता रहता था। बट अगेन एज अ टीम वी वर वेरी वेरी एफिशिएंट टू मोबाइल, एंड सर का भी बहुत बड़ा रोल था कि ही वाज ऑल द टाइम कीपिंग अ टैब ऑन अस कि ठीक है 3 ऑफ अस जो है यू हैव टू यू नो मूव एज अ टीम, कि आप चीजों को कैसे कोऑर्डिनेट करोगे। जब हमारे में कमी होती थी सर यूज्ड टू गिव फीडबैक, वेरी क्रिटिकल फीडबैक कि अच्छा दिस इज समथिंग व्हिच इज कमिंग आउट वेरी इंडिविजुअल। ऐसे ऐसे करके हुआ और हम प्राइम मिनिस्टर अवार्ड जीते। 24 मार्च को सर ने हम लोग को एनआईसी में बुलाया, एंड 3 पेपर वहां पे रखे हुए थे, उस 3 पेपर में सर्टेन इंस्ट्रक्शंस प्रिंटेड थे, एंड सर वाज यू नो स्टैंडिंग। तो वो मेरे को थोड़ा सा विजुअलाइज किया ना, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस बैकग्राउंड है, तो मैं हमेशा इमेजिन करता रहता था कि जब मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन अब जब न्यूक्लियर थिएटर वॉर रूम में आप होंगे या फिर कहीं पे यू नो दिस इज वेरी हाई स्टेक गेम्स, तो वहां का लीडरशिप कैसे होगा यू नो। मूवीज में हमने तो ऐसे ही देखा ना, पीपल आर नॉट सिटिंग देयर, इट्स वेरी मोबाइल क्राउड, यू नो टेम्परेचर हाई है। तो दैट वाज द डे सर को देखा, आई नितेश, अरे यार guys, bye. so the entire Jharkhand family is there, yeah, My God. Avinash must be there, so yeah, अविनाश, आई थिंक अविनाश बिजी है, अविनाश बिजी है। acha he's busy, भाई तुम कहाँ बताओ यार, कितना अच्छा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो, सही है, बहुत सही। लेकिन यार मतलब मैं बोलूंगा कि ये इतने सब लोग साथ में तब भी नीतीश कैसे बात कर पाया यार। हाउ कैन ही, मतलब नहीं भाई, मैं अलग अलग रूम पे था, यहाँ अलग रूम पे चिल आउट कर रहे हैं सभी। अच्छा, ओ बढ़िया। और वो सचिन भाई एक्स MGNF जो अभी ये असिस्टेंट इंजीनियर बन गए। भाई हाथ उठाओ। अरे वाह, बधाई हो आपको, पार्टी वगैरह दे रहे हैं कि नहीं Congratulations, भाई। सचिन? एक मिनट क्या क्या जस्ट रिपीट करना क्वेश्चन। हाँ मैंने बोला सचिन से पार्टी लो यार, आप लोग अच्छे खासे उसके पैसे खर्च करवाओ। सचिन के 10,000 उड़वा दिए भाई हमने। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कम ही है। चलो आपने डिलीवर किया भाई, सब लोगों ने डिलीवर किया एज अ टीम। ठीक। और अच्छा एक इंट्रोडक्शन कर देते हैं। हाँ बिल्कुल करा दो हाँ यार, कम ऑन गाइस यार। अरे वो पूछ रहा था। Hi, Sanjana here from हाय Pune. संजना। हाय संजना। Hi, Sukriti from Kodakwa. हम शैडोज में रहना लो, पकड़ो। Hello, I'm Shravan from Godda, Jharkhand. हाय हाय। पंचायती चल रहा है। हाय।
देख लो सामने देख लो अबे हो गया। Hi, this is Vanna from Pakur. हाय सुनंदा। अबे तुम भी बोल दो यार। सौरभ from गढ़वा। हाय सौरभ। तुम भी बोल दो यार, ऐसे नहीं बोलोगे। अच्छा इधर इधर कोई इधर हो गया। पता है ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये भी लिंक आ जाएगा। आ गया लो। तो मजा आएगा ना। अच्छा एमएसडी को पता चलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? क्या ही क्या ये होगा? भाई सबको पता है, उनको ही पता है यही हो रहा है। भाई हैंग आउट टाइम है, चिल। पोर्टल रखा हुआ रहता है। बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स इन एमजीएनएफ जो हम लोग मिले थे। So just yes. like anecdote, like one of my our friends, you know, who was with us in last AM3 and he got into EPFO. So ये जो last time का जो recruitment आया था तो EPFO में उसका selection हो गया and उसको पता था कि कुछ दिन बाद जाना है, तो भाई वो रो दिया जब छोड़, मतलब वहां से AM से जा रहा था ना, वो बहुत रो दिया। मतलब जैसे ही ट्रेन निकला छूटा, मतलब करंटली ही इज माय रूममेट, वो हॉल में बैठा है वो अभी वहां पे। तो अभी हम लोग 2 MJNF पे साथ में रह रहे हैं, लेफ्ट हैंड उसका ऑफिस अभी इधर है। तो इवन आई फेल्ट, मतलब अभी मैंने तो छोड़ा भी नहीं है, मुझे एक बार जाना भी है, लेकिन जब AM खत्म हो रहा था और इसके बाद पता था कि बस 2-4 दिन के लिए आना है, तो बहुत दिल से बुरा लगा यार। मतलब काफी टाइम बाद ऐसे सेंटी टाइप का बुरा लगा था। सो इट्स अ वो जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट से टाइम। आने के बाद सब लोग जो मिलते हैं ना, वो हम लोग के टाइम में भी था और अभी भी होगा कि वो अब दिन भर तो एग्जॉस्ट हो जाओगे जिनके सेशंस है वो करके, और फिर वही शाम का जो टाइम मिलता है जब आप बातचीत करते हो, साथ में खाना खाते हो, कुछ अपने को थोड़ा सा लिक्विडेट करते हो, तो वो काफी ऑब्वियसली मतलब इट मेक्स मेमोरी। अभी जैसे जब भी मैं भी कहीं बाहर जाता हूँ या फिर कोई भी दोस्त, हम लोग ऐसे सिटी में जहाँ पे कोई ना कोई हमारा फेलोमेट जो काम कर रहा है, तो वी ड्रॉप टेक्स्ट, वी मीट ईच अदर, और मतलब थोड़ा सा बढ़िया लगता है कि इट्स ऑलवेज अ वेरी नाइस फीलिंग, यू नो, अ सेंस ऑफ थोड़ा सा बॉन्डिंग। तो Okay, और so you कई सारे are शहर में आपके दोस्त हो तो आपके पैसे भी बचते हैं, हाँ बिल्कुल। हाँ बहुत। तो वो चीज है। या फिर ये नेटवर्क जो बनाया है, लाइक इन एनी इंडस्ट्री आई गो आफ्टर दिस, लोगों को पता पूछ के जाते हैं कि हाँ उस देश में जाना है तो वेयर शुड आई गो एंड स्टे, वेयर यस शुड आई यस ईट, या वो चीज होना भी चाहिए। मतलब अब ये फेलोशिप की जो कम्युनिटी है ना, अब ये तो इस देश में मतलब अभी रहेगी, अगले 10-20 साल तक तो रहेगी, because now it has become the part of policy। आप देखोगे मतलब even government is more interested into fellowships rather than doing regular hirings। तो मतलब और खास करके हमारा टाइम बहुत सही टाइम का है। आप देखोगे जब PMRDF का टाइम है, इट वाज ऑफ 2012, वो 12-13, तो दे वर नॉट वेरी कनेक्टेड। वो चीज है, जिला स्वच्छ भारत प्रेरक वगैरह का भी टाइम रहा वैसा, बट दिस इज द टाइम कि अब ठीक है बड़े स्केल पे मतलब फेलोशिप्स आ रही है, तो ये चीजें हैं कि थोड़ा सा इतना फॉर्मल बना दिया यार, तुम हाथ ऊपर वगैरह करते हो। Yeah, Nitesh, just come back now, man। पूछ लो। ऐसे हाथ खड़ा कर दो या फिर सीधा बोल ही दो। मुझे लग रहा है VC अटेंड कर करके वो वाला मोड में, वो ऑटोमेटिक मोड में हो गया। अरे नहीं, वो जस्ट हैबिट बन गया है, सही बोले। आई थिंक VC वाला। वो शॉशैंक रिडेम्पशन में वो जो सीन है ना, आप देखोगे तो वो जेल से बहुत सालों के बाद निकलता है एंड ही वर्क्स इन अ शॉप। यस, तो ही हैड टू पी ऑल द टाइम, तो उसको तो जेल में परमिशन लेने का आदत है, तो वो अपने ओनर से जाके बार बार परमिशन लेता है एंड देन ही हाइंडसाइट में बोलता है कि मैं कैसे समझाऊं कि मुझे इसी की आदत हो गई है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। यस। तो वो जो चीज है, नहीं ये बोल रहा था कि लाइक आई थिंक शुरू पे मेंशन नहीं किया था वेदांत और विशाल भाई, लाइक बिग मतलब थैंक यू या फिर एक एप्रिसिएशन नहीं भाई, अरे यार अरे नहीं, अच्छा इतना ठीक है, कुछ स्मॉल एटलीस्ट लिटिल बिट ऑफ एप्रिसिएशन की इतने सारे कोहॉर्ट है, मेरे को तो भाई याद भी नहीं रहता कि कौन सा IIM के कौन से फेलोज कौन से वो स्टेट के हैं। आई थिंक केवल 4-5 फेलोज अपने कोहॉर्ट छोड़ के वो लिंक हो पाते हैं, अदरवाइज इतने लोग के साथ वो
कर पाना वो बहुत मुश्किल है। और आई थिंक 11th एपिसोड बन गया है, तो कितने तक का प्लान है ऐसे? काफी सर, अभी मतलब तुम्हारे एटलीस्ट प्लान तो माय सब कवर करने का था। हाँ अच्छा। प्लान तो सब कवर करने बट लाइक ऑल इंडिया ग्रुप पे चल रहा था बैठ के लाइक दीज आर द फेलोज, कितना भी कोशिश कर लो दे विल नेवर जॉइन। तो ठीक है, आई हैव टेकन लाइक 600 फेलोज है, एटलीस्ट 30 to 40%, 300 350 के आसपास फेलोज तो कवर कर पाएंगे होपफुली बाय द एंड ऑफ एमजीएनएफ, क्योंकि वंस इट्स द अ बिग एमजीएनएफ नंबर। हाँ इट एंड, उसके बाद में कोई ज्वाइन नहीं करेगा, आई नो दैट। और बस लॉजिक भी पता है, जैसे सोचा था ना वैसे थोड़ा थोड़ा हो रहा है। जैसे लास्ट टाइम के एपिसोड में ना उत्कर्ष ने बोला था, उत्कर्ष शुक्ला, तो वो बोला कि जैसे अभी उसको किसी की जरूरत पड़ेगी, मतलब और उसने कम्युनिकेशन भी नहीं किया है, तो वो सीधा वेदांत को कॉल करेगा, ठीक है। तो मतलब वो जो इनिशियल वो एक लिंकेज बन गया ना, अभी वेदांत इज नोन टू सो मेनी पीपल। अब मुझे जिनके साथ मैंने बात किया उनका एक्वेंट एंड बाय एक्सटेंशन थ्रू देम उनके साथ एक्वेंटेंसेस है। सो ये छोटे छोटे नेटवर्क्स और ज्यादा बढ़ेंगे ऐसा, एंड इवेंचुअली वो जो होता है कि नेटवर्क है तुम्हारा तुम्हारा इन द सेंस दिस, मतलब नॉट फॉर फ्रॉम माय इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू बट फॉर ऑल ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू। तो ग्रुप की स्ट्रेंथ ऐसे वो थोड़ा ये होगी कि मतलब दे एग्जिस्ट एज अ ट्राइब, और वो ट्राइब मतलब एक दूसरे को लेवरेज करेंगे। तो ये थॉट था इनिशियली, वो हो रहा है तो बहुत सही लग रहा है। कोई मिनिस्ट्री को जाके ये बताओ कि कुछ दिक्कत होगा तो वेदांत को टैपिंग करो, मोबिलाइज हाँ, कर लो। वो ठीक मैसेज है। फैला देगा, मैसेज हर जगह पे हाँ सही हाँ, तरीके से। obviously, मतलब ये बट ये लेकिन पूरा इसमें वेदांत का काफी एफर्ट है। हाँ, मतलब क्या मेरे क्या है ना, 1000 चीजें मेरी स्प्रेड आउट थी। हमने स्टार्टिंग में वी सेट आउट, बट इट इज रियली वेदांत हु कैरिड इट फॉरवर्ड। इफ नॉट फॉर वेदांत ये मतलब बहुत मतलब हैफेजार्ड भी होता, एंड जिस लेवल पे आया है वो नहीं होता, मतलब द कंसिस्टेंसी एंड ऑल। तो रियली इट्स हिज टू हिज एफर्ट्स की इट मतलब ये टेक ऑफ होने में उसका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरी गिल्टी ये है कि मतलब बहुत रेगुलर कंसिस्टेंसी से मैं नहीं कंट्रीब्यूट कर पाया। काफी ये बढ़िया रहेगा। नोबडी नोस कि ये मतलब आने वाले टाइम में ये कैसा टर्न आउट होगा। आर्काइव्स में जाके मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आप उस समय उन चीजों का अहमियत नहीं, जैसे आई वॉच एपिसोड्स, कुछ चीजें मैं सुनता हूँ, कुछ पुराने इंटरव्यूज को आर्काइव्स में उधर खोज काज के किधर निकाल के, दोज वर ऑफ 80s 90s, और वो उस समय का, तो मतलब अभी अपने आप में लगता है यार कि वो हमें मतलब वो सुनने को मिल रहा है उन लोगों को। तो यस 20-30 इयर्स जब राइट, ऐसा 20 कुछ 30 years down the line, this sort of stuff अगर रिकॉर्ड किया हमने वो किया था, वो भी हाँ। and out of mundanity when you do these kind of stuff, मतलब it's a sort of meaning that we are all creating together. राइट, ठीक है, इसके लिए नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, जिस दिन मौका आएगा। मतलब ये तो मैंने काफी सीनियर से, मैं भी जब बहुत मुझे स्टार्टिंग में हमको लगता है ये काफी हम लोग रेजोनेट कर पाएंगे कि जब आप लोग को लगता है कि एनर्जी काफी है और आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन वी आर नॉट एबल टू फाइंड ए स्पेस या अपॉर्चुनिटी, तो देयर इज अ सॉर्ट ऑफ हेजिटेशन कि अरे यार बहुत बहुत पूरा सिस्टम को गाली देंगे अब तो, कि अरे यार ये तो सब निकम्मे नालायक एक है, काम वाले आदमी हम ही को काम नहीं मिल रहा, तो वो टोन लगता है अपने को। लेकिन एक चीज मैंने देखा, जब अब मान लो जब आप मतलब पब्लिक पॉलिसी की किताबें मैं पढ़ने में काफी इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं काफी पढ़ते रहता हूँ, कोशिश करता हूँ, तो एक चीज मैंने देखा कि बहुत बार ऐसा होता है कि इस कंट्री में, इतना बड़ा जो कंट्री है, तो एक बहुत लंबा समय के बाद में, कोई एक मोमेंट के बाद में एक अपॉर्चुनिटी बनेगा जहां पे आप आमूल बदलाव कर सकते हैं, कभी कभी तुरंत भी कर सकते हैं। तो दैट पेशेंस हैज टू बी, मतलब मैं कहीं एक बार पढ़ रहा था कि 1991 का जो मोमेंट हुआ इस देश में, एलपीजी मोमेंट जो है, तो उस मोमेंट को मतलब देयर वाज वन राइटर, तो उसको मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, आई वाज रीडिंग अ बुक, तो उसमें ना सीतापति, विनय सीतापति, इस नेम इज विनय सीतापति है, तो दसों का वगैरह में पढ़ाते, तो उन्होंने एक बात बोली कि उस समय ही वाज राइटिंग अबाउट कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे, you have technocrats, you have the politicians, and then you have certain businessmen, तो वो सारा, and plus you had that balance of payment crisis, तो सारा का जो कॉकटेल बना, there were people who were willing to take risk, the people who had vision, वो मोमेंट बना, और वो ऐसा हो गया, एक डायरेक्शन में कंट्री चला गया। सिमिलर आप
देखो आई वाज रीडिंग एक बार ऐसे ही टीएन सेशन जो इलेक्शन कमिश्नर मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मतलब अगर इस Okay, देश में आज 19 से 50 साल बाद भी, यस 1991 के टाइम का 92 93 या 90 यस वही टाइम एग्जैक्टली सही। हाँ तो आप सोचो कि इस देश में इलेक्शन रिफॉर्म्स का बाद आज या 50 साल बाद भी होगा तो यू विल हैव अ चैप्टर व्हिच इज टीएन सेशन। या तो मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, वो पूरे अपने करियर में ही वाज what can be called an average bureaucrat, मतलब there was nothing glorious which is attached to his profile in 20-30 years of service। और उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया ही इसीलिए गया कि दिस मैन कैन बी टेम्ड, वो कंट्रोल में रहे। बट वो इतना, वो अपना बोला जा सकता करियर का पीक में ही कैच द मोमेंट, और फिर ऐसा मोमेंट बना कि वो पूरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड नंबर ऑफ रिफॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि मतलब ही एक्सरसाइजेस मोर देन पावर दैट ही हैज, एंड ही गेव अ वेरी बोल्स्टर्स, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने कि आई ईट पॉलिटिशियंस इन द ब्रेकफास्ट, तो ऐसा बहुत करके एक मोमेंट बना, समझ रहे हो। तो इट वाज लाइक, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सबको वो जो पेशेंस लेवल है, अब हम तो सीख ही रहे हैं, अभी हम तो नए हैं, हम लोग तो अभी कहाँ ही कुछ भी है, लेकिन वो जो लेवल का पेशेंस है 20 years 30 years की, कैन यू हैंग डाउन फॉर दैट वन मोमेंट दैट कैन गिव यू स्पेस। राइट अब इस देश में तो सेक्रेटरीज भी देख रहे हो, असली में कंट्री को डायरेक्शन देने वाले लोग कौन है? It is those people who are sitting in the Delhi or in the state governments, and they are the people who have served in the government in 20-30 years। चाहे वो एकेडमिया से भी है तो वो ऐसे लोग हैं जो established लोग हैं। अब वो प्रैक्टिशनर है, हमारे डेवलपमेंट प्रोफेशनल है, वो भी है जो बहुत लंबे समय तक अपना उन्होंने टाइम दिया है। तो यार वो चीज है कि हमें कहीं ना कहीं एक होप देके, मतलब right it will save us। okay, so we can have like one last remark and stop right the recording part of it, of that. Srishti, Nitesh. I think, well, let Srishti talk, then I'll finish up in just a few Okay. things. Okay, cool. Srishti, are you there? I was just going through her LinkedIn page. She has a lot of things, I think. Yeah, which is why we requested her to like I'll definitely go through, मतलब चलो काफी बड़े पर देखा जाएगा जरूर जरूर। सेकंड डिवाइस है, हाँ, that's better. Acha, meanwhile, Ramesh bhai, like Gumla is my home district, so मैं कौन सा ब्लॉक है आपका यहाँ पे घर? कमडारा ब्लॉक। अरे कामडारा यार बहुत प्यारा, बहुत सुंदर जगह है। इसका जो घर है, आप उधर जाओगे, वो स्कूल के किनारे, जो वहां रोड के किनारे जो चर्च है, उसके जस्ट सामने आपको स्कूल ग्राउंड, इतना प्यारा जगह है कि आप देखोगे तो लगेगा क्या जाएगी। हाँ बताइए, यहाँ क्या बोल रहे थे? तो मैं लाइक कॉल करूंगा अविनाश को, तो ऐसे परेशान करता ही हूँ कि कैसा चल रहा है गुमला में प्रोजेक्ट्स वगैरह, लेकिन आपको भी अब परेशान करूंगा 2-4 एनी दिन। टाइम, मतलब आप जब भी इधर आओ तो मतलब मुझे जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट, बता दो, विल मीट, विल सिट टुगेदर, विल हैव फूड। ओके cool. Srishti, okay, fine. We'll stop the recording now. Yeah, Off Srishti, the record, we can go. Yeah. So And I yeah, feel you thanks a were one lot. of the best episodes I felt